Hello students, welcome to lecture number 11th of cash flow statement. We are left with around 6 lectures of this chapter और अब हम करने जा रहे हैं comprehensive questions. तो इस हिसाब से approximately हमने 12 questions और करने हैं, जिसके अंदर पहले बनेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो मुझे आपके चाहिए 3 से 4 मिनट फोकस्ड. Listen carefully. A. Cash flow from operating activities. Profit earned during the year from statement of P&L. Add appropriations like transfer to any reserve like general reserve plus dividend of last year. It could be interim dividend, proposed dividend, equity dividend, preference dividend. But mind it, if equity dividend is paid, preference dividend is to be paid, but dividend is an appropriation. Plus provision for tax made, will get profit before tax. Add non-cash and non-operating expenses, naming depreciation on tangible assets, amortization of intangible assets, amortization of fictitious assets, interest on debentures, loss on sale of fixed asset, similar etc. items. Then less non-cash and non-operating incomes like rent received, interest received, dividend received, profit on sale of fixed asset and similar items etc. What we get is operating profit before working capital changes plus increase in current liabilities plus decrease in current asset minus decrease in current liability minus increase in current asset. While considering current assets, we do not consider cash and cash equivalents. We get is cash generated from operations minus income tax paid. Income tax paid must be equal to income tax made. Paid is equal to made if account is not prepared, but if account is prepared, we have to check whether how much is paid or made. You'll get the answer. If positive, it's cash inflow. If negative, is cash outflow from operating activities. B. Cash flow from investing activities. Purchase of non-current assets, whether tangible or intangible, minus because cash is going out. Sale of tangible assets, whether fixed non-current assets, whether tangible or intangible, plus because cash is going out, coming in, sale. Sale of investments plus purchase of investments minus. There cannot be sale of goodwill because goodwill, if sold, you have sold your name. The company has been liquidated unless otherwise specified. Any decrease in non-current asset is considered as amortization unless other specified. And increase in current asset, non-current asset is considered as purchase. But if any adjustment is given, you are supposed to make the account. In that case, you have to see whether provision for depreciation account is maintained or provision for depreciation account is not maintained. Along with, you have to add 3 things: rent received, interest received, dividend received. Please make it a point. Rent received, interest received and dividend received, ये जो हम प्लस कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग में माइनस हुए हैं. नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. ऑपरेटिंग से माइनस क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है, इन्वेस्टिंग में प्लस क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम है. यहां पे हम करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते क्योंकि वो इज्यूम की जाती हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं. सी. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. Increase in share capital plus decrease in share capital minus. Increase in debt plus decrease in debt minus. Increase in bank overdraft plus decrease in bank overdraft minus. पैसे आ रहे हैं तो प्लस, पैसे जा रहे हैं तो माइनस. If the debentures are in current liabilities, even though we'll consider it here. इसके अलावा डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड माइनस होता है. जो इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स और बैंक लोन को पे किया और डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को पे किया वो माइनस होगा.
इस चीज का ध्यान रखना, वो चीजें माइनस होंगी जो ऑपरेटिंग में प्लस हुई थी, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं था इसलिए प्लस किया, और यहां माइनस करेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग में नहीं, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स फाइनेंस से डील कर रही है। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट से डील कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और फिर हम तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इससे हमें पता लग जाएगा कि नेट पैसा कितना आया है, हाउ मच इज द नेट बैलेंस वी रिसीव्ड इन कैश। और वो टेक्निकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का चेंज होगा। अगर नेट आंसर आ रहा है 1 लाख तो कैश इस साल 1 लाख से बड़ा होगा, और अगर नेट बैलेंस आ रहा है 60,000 माइनस तो नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर 60 कम हुआ होगा। और अगर क्वेश्चन में रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है तो वो टैक्स पेड और टैक्स पेड में एडजस्ट होगी। कूल, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू कैन नॉट राइट इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि ऑपरेटिंग का ही इनडायरेक्ट मेथड है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का तो एक ही मेथड होता है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ओके, पहले हमें अकाउंट भी देखना था कौन कौन सा बन सकता है। चलिए अब फॉर्मेट बना लिए। प्रेफर रहता है कि पहले हम वर्किंग नोट बना लें, जौन सा अकाउंट बन सकता है वो अकाउंट बना लें। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास मशीनरी अकाउंट है और नीचे मशीनरी की इंफॉर्मेशन है, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा। और हम देख सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है करंट लायबिलिटी में, तो उसका अकाउंट भी बनेगा। एडजस्टमेंट्स में मशीनरी है और करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो लेट्स मेक दी अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी अकाउंट, लेट इट बी, ये पूरा फॉर्मेट ही हमने बना दिया। नाउ दिस इज वर्किंग नोट्स। आपके लिए फुल पेज इनफ है, एक पूरा पेज इनफ है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। इसके आगे जितने क्वेश्चंस होंगे पहले हम वर्किंग नोट ही बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 16 lakh. Machinery being asset have debit balance, to balance brought down, by balance carried down. Depreciation charged during the year 2 lakh, by depreciation 2 lakh. मैच कर गया तो ठीक, नहीं किया तो लेट्स फाइंड इट। द बैलेंस इज 9 लाख, 2 कैश और 2 बैंक परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर 9 लाख। हमने 9 लाख की मशीनरी खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। Being liability, it has credit balance. Being liability, it has credit balance. By balance brought down, opening balance 60. By balance brought down, opening balance 60. To balance carried down, closing balance 80. Provision for tax, to balance brought down, opening 60, closing 80. पेड गिवन है तो मेड आएगा, मेड गिवन है तो पेड आएगा, कुछ भी नहीं गिवन, नीदर पेड इज गिवन और मेड इज गिवन। तो कंटीजेंट लायबिलिटी की तरफ पिछले साल का हम इस साल पे करेंगे। टू कैश पेड, बैलेंसिंग फिगर 6 लाख, और इस साल हम अनाउंस करेंगे P&L में डालेंगे बाय P&L मेड 8 लाख, क्लोज। ये नहीं है कि इधर 6 लाख है इधर 8 लाख है तो इधर 2 लाख डाल दिया और सम क्लोज हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल।
पिछले साल का पे हो जाएगा, इस साल का अनाउंस हो जाएगा, मेड हो जाएगा. सो दिस एरोज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. पेड गिवन है तो मेड, मेड गिवन है तो पेड, दोनों ही नहीं गिवन तो ओपनिंग विल बी पेड, क्लोजिंग विल बी मेड. स्पीड अप. ओपनिंग इज इक्वल टू पेड एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू मेड. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें पेड गिवन था तो मेड आया, मेड गिवन है तो पेड आया. कंप्लीट कीजिए. स्पीड अप. Machinery without provision for depreciation and provision for tax, neither paid given nor made. चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन. बैक टू द फॉर्मेट. particulars, details, amount. A, cash flow from operating activities. Profit earned during the year. Surplus of the year. आपका ध्यान जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में. आपका ध्यान जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में. 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, 1 लाख प्लस एप्रोप्रिएशंस. एप्रोप्रिएशंस में जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है. अब पूरा क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे? जर्नल रिजर्व पड़ा होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं है. डिविडेंड नहीं है, एडजस्टमेंट में होगा, बैलेंस शीट में तो होता नहीं. टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड. हाउ मच इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड? 8 lakh. No, 80,000. It is 80,000, not 8 lakh. Provision for tax made 80,000. So 1,80,000 is profits before tax. इसमें एडजस्ट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एड depreciation on machinery. मशीनरी अकाउंट से देख सकते हैं डेप्रिसिएशन है 2 लाख. फिर हमारा ध्यान जाएगा गुडविल पे. 2 लाख से 140 हो रही है, गुडविल 60,000 से राइट ऑफ हो रही है. गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप ध्यान देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. 9% ऑफ 2 लाख 18,000 आना चाहिए. 9% ऑफ 2 लाख इज 18,000. बट नीचे गिवन है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज 45, तो वही आएगा. इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स यहां पर बोरोइंग्स हैं, लोगों से लोन लिया हुआ है. अगर ये अमाउंट डायरेक्टली ना गिवन होती तो ओपनिंग पे लगाते, और ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, फाइनेंसिंग से माइनस. लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में नहीं है. विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. 244, 40, 485 आई गेस. बाकी कैलकुलेशन आपको पता ही है मेरी कैसी है. 2, 380, 440, 485. cool. Now we'll adjust current assets and current liabilities. Starting with current assets, we have inventories. Inventories बढ़ रही हैं माइनस 50.
ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं माइनस ₹2,00,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहां पे नहीं आएगा। मूविंग टू करंट लायबिलिटीज, वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, नहीं वो तो उसका अकाउंट बना है हमारा। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना है, इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानते। ओपनिंग पेड हुआ है जो ऑपरेटिंग में जाएगा, क्लोजिंग मेड हुआ है जो ऑपरेटिंग में जाएगा, और ये 8 लाख नहीं 80,000 था, राइट। सो बैक टू द टॉपिक, विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। $485 minus 50 minus 2 lakh is 235. Surplus during the year 1 lakh plus provision for tax made 80,000 plus depreciation which is 2 lakh plus गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल हमारी कम हो रही है 60,000 प्लस डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया है 45,000, 485। इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं माइनस, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं माइनस, माइनस टैक्स पेड। हाउ मच इज टैक्स पेड? 60,000. So the answer is 175. We'll send it in the outer column. Cash inflow from operating activities. After leaving a line, एक लाइन छोड़ के, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए और कुछ भी नहीं। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम कंसीडर करेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास हैं फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल, इंटेंजेबल। मशीनरी की परचेज आई थी जब हमने अकाउंट बनाया, परचेज ऑफ मशीनरी 9 लाख माइनस गुडविल की रिटर्न ऑफ थी, अमोर्टाइजेशन थी, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन। गुडविल बढ़ती होती तो परचेज होती। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ऑपरेटिंग में माइनस भी होता। दिस इज योर आंसर फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेंड इट इन द आउटर कॉलम, बाहर के कॉलम में भेज दीजिए। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आफ्टर लीविंग अ लाइन, just to make it presentable. C, cash flow from financing activities. We consider finance, share capital, debentures. बेसिकली लायबिलिटी के पोर्शन पे ध्यान दीजिए। शेयर कैपिटल बढ़ रही है, शेयर कैपिटल को बढ़ने का मतलब है हमने शेयर इशू किए हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, हमने शेयर इशू किए हैं 4 लाख के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स बढ़े हैं, मतलब ने लोगों से लोन लिया है। इशू ऑफ 9% पब्लिक डिपॉजिट्स, बेसिकली डिबेंचर्स 4 लाख। दैट्स इट। अब शेयर पर डिविडेंड दिया होगा, नहीं है,
पब्लिक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दिया होगा, है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स 45,000, डेट ना गिवन होती, अमाउंट ना गिवन होती तो ओपनिंग पे लगाते। ये देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट है 45,000, ये ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है तो किस चीज का खर्चा है? ये फाइनेंस का खर्चा है। इसलिए अब हम फाइनेंस में गए और फाइनेंस में हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। 8 minus 45 is 755 positive. Cash inflow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब हमारे पास 1,75,000 रुपये बिजनेस से आए, 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में गए और 755 फाइनेंस से आए। सो इसके बाद सम को क्लोज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, डी विच इज ए प्लस बी प्लस सी। पॉजिटिव आ रहा है तो कैश बढ़ा है, नेगेटिव आ रहा है तो कैश कम हुआ है। 1,75,000 माइनस 9 लाख प्लस 7,55,000। आई रिपीट, 1,75,000 माइनस 9 lakh plus 7,55,000 is 30,000 positive. So it is net increase in cash and cash equivalents. ये आपका आंसर आ गया, पर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा बैलेंस शीट से, क्या सच में इतना कैश बढ़ रहा है। देखिए पहले कितना कैश है 60 और अब 90। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या आएगा? कैश, बैंक, फॉरेन करेंसी फॉर नॉट हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी इन टर्म्स फॉर कैश, बैंक ड्राफ्ट्स, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड बिल्स, ये सब आते हैं। तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हमारे पास पहले 60,000 थे, पहले 60,000 कैश था, 30,000 इस साल आया। 30 कैसे आया? 755 फाइनेंस से आया, 175 ऑपरेट से आया, 9 लाख 9 लाख गया। द नेट आंसर इज दिस प्लस दिस 90, which is closing cash and cash equivalents. Giving you 1.5 minute, पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कीजिए, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट कीजिए। हमें नहीं पता होता कितना बड़ा फॉर्मेट बनेगा, इसलिए हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। इन दिस क्वेश्चन मुझे पता था तो मैंने वर्किंग नोट बाद में बनाया। कौन से अकाउंट्स बनते हैं आपको पता है? नॉन करंट एसेट अकाउंट, नॉन करंट एसेट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। These are the accounts that are supposed to be prepared. Speed up. 1 minute, 1.5 minute to complete this sum, then we'll move to the new question. So let's proceed with the new question
Question number 21. From the following balance sheets of Sonam Limited as on 31st March 14 and 31st March 15, prepare cash flow statement. Share capital financing activity, statement of P&L operating with profit compute करते हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. सो चेक वर्किंग नोट नंबर 1. इट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो विल मेक टैक्स अकाउंट हेयर. देन वी हैव एसेट्स में बिल्डिंग, पेटेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. कैश एंड कैश इक्वलेंस, दैट इज डी, लास्ट में नेट आंसर चेक करने के लिए. ड्यूरिंग द ईयर 1450, बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू 50 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग इज 4. तो इस क्वेश्चन में हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं. एक बनाना है बिल्डिंग अकाउंट और एक बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. लेट्स स्टार्ट विद द सम. क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. Being a liability, it has credit balance. I repeat, being a liability, it has credit balance. Buy balance brought down 30,000. To balance carried down 32,500. एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है, ना पेड ना मेड. सो ओपनिंग जो होगा पिछले साल का टैक्स वो इस साल पे कर देंगे और क्लोजिंग जो होगा वो हम इस साल P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे. टोटल इज 62,500. नाउ विल मेक बिल्डिंग अकाउंट. वैसे तो पेटेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बट उनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो देख के पता लग जाएगा परचेज है, सेल है कि डेप्रिसिएशन है. बट बिल्डिंग की हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हमें बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. बिल्डिंग बीन एसेट, इट हैज डेबिट बैलेंस. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बिल्डिंग इज 150, क्लोजिंग बिल्डिंग इज 150. पहले 1.5 लाख की बिल्डिंग थी, अभी भी 1.5 लाख की बिल्डिंग है. ड्यूरिंग द ईयर 1450, मतलब ये वाला साल, बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू 50 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2. 50 की बिल्डिंग को 2000 के लॉस पे बेचा. बीवी पहले बुक वैल्यू गिवन है तो 48,000 में बेचा. बाय कैश सेल 48 में बेचा. बाय P&L लॉस 2000 के लॉस पे बेचा. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग इज 4,000 बाय डेप्रिसिएशन. ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बुक वैल्यू गिवन है. कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो BV आता है, पहले से ही BV बुक वैल्यू गिवन है. सो द बैलेंसिंग फिगर इज दिस. टू कैश परचेजेस और बैंक परचेजेस. ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी भी बिल्डिंग खरीदी, जितने की भी बिल्डिंग खरीदी, 1 लाख, दिस इज 50, 2,04,000 इज टोटल. और बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 54,000. 55,000 की बिल्डिंग हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है. कूल. कंप्लीट कीजिए, स्पीड अप. Now we'll start with the question. Make the format particulars.
details, amount, in rupees. A, cash flow from operating activities. As you all know, we start from the profit earned during the year. Surplus of the year या profit earned during the year. 25 से 50, अब देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पहले 25,000 फिर 50,000. सो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000 प्लस एप्रोप्रिएशंस. क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, IFR, WCR कुछ भी नहीं है. सो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी हमने टैक्स अनाउंस किया 32,500. So 57,500 is profits before tax. Plus non-cash and non-operating expenses. Depreciation on machinery or building. Depreciation on building 4,000. बेसिकली आपको एक एक करके सभी चेक करने होंगे. हमारे पास बिल्डिंग है, अकाउंट से देख लिया. पेटेंट्स कम हो रही हैं 12,500 से 11,250, 12,500 से 11,250, 1250. दिस इज पेटेंट्स रिटर्न ऑफ प्लस पेटेंट्स रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ की जगह अमोटाइजेशन भी लिख सकते हैं, अमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स 1250. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो डेप्रिसिएशन होती नहीं ना अमोटाइजेशन होती है. प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 2,000 प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना 12% ऑफ 50,000, 50,000 का 12%. कोई डेट नहीं गिवन तो ओपनिंग पे होगा. 50,000 का 12% इज 5, दैट इज 6,000. माइनस रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कुछ भी नहीं है. we will get operating profit before working capital changes. $70,750. अब इसमें एडजस्ट करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स. इन्वेंट्रीज बढ़ रही है माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 1250. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं माइनस $13,750. मूविंग टू करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में एक है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका तो हमने अकाउंट ही बना लिया. देन वी हैव ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स. करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है माइनस दैट इज 3,750. Yes, you will get the answer
कैश generated from operations, cash generated from operations 7750 minus 1250 minus 13750 minus 3750 is 52,000. 7750 minus 1250 minus 13750 minus 3750 is 52,000 minus tax paid. पिछले साल का टैक्स हमने इस साल पे किया होगा, विच इज नथिंग बट 30,000. नेट आंसर इज 22,000. आउटर कॉलम कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लीविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़ने के बाद बी कैश फ्लो फ्रॉम investing activities. We will consider only assets. Stands for building, patents, non-current investments. बिल्डिंग का तो हमारा अकाउंट ही बना हुआ है, ये देखिए बिल्डिंग अकाउंट हमारा बना हुआ है. बिल्डिंग की परचेजेस है और बिल्डिंग की सेल है. पैसे जा रहे हैं और पैसे आ रहे हैं. सो परचेज ऑफ बिल्डिंग, cash is going out, negative. Sale of building, cash is coming in, positive. Then we have patents. Patents की तो रिटर्न ऑफ थी, सेल नहीं थी. इंटेंजिबल एसेट कम होता है तो अमोर्टाइजेशन माना जाता है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,750. पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं माइनस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है. रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है. दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. नेगेटिव आ रहा है. कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 54,000 negative, 48,000 positive, 18,750 negative. So answer is 24,750 negative. 24,750 नेगेटिव में आ रहा है आंसर. Yes. After leaving a line, C. Cash flow from financing activities. What we consider? We will consider shares, debentures, बैंक लोन. शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो हमने शेयर इशू किए हैं. इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 शेयर इशू किए हैं. इशू ऑफ शेयर कैपिटल. बैंक लोन कम हो रहा है, मतलब बैंक लोन की रीपेमेंट की है. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 25,000 माइनस. देन वी कंसीडर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड. डिविडेंड तो इसमें है नहीं. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड. ये देखिए ऑपरेटिंग में इसे प्लस किया था. ऑपरेटिंग में इसे प्लस किया था क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं था. तो ये किसका खर्चा था? ये फाइनेंस का खर्चा था, इसलिए फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा 6,000. दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट. 50 minus 25, 25 minus 6 is 19. 19,000 पॉजिटिव. कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज.
जनरली ऑपरेटिंग का आंसर पॉजिटिव आता है क्योंकि बिजनेस से पैसा आता है, और इन्वेस्टिंग का नेगेटिव आता है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीनरी बेचते कम है और कम वैल्यू पे बिकती है आफ्टर डेप्रिसिएशन, खरीदते महंगी है। तो नॉर्मली जनरली इन्वेस्टिंग नेगेटिव होता है, ऑपरेटिंग पॉजिटिव होता है। फाइनेंसिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब बिजनेस शुरू होता है स्टार्टिंग में फिनांस लेते हैं पॉजिटिव, और एक टाइम के बाद 10 साल 15 साल बाद हम डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर्स रिडीम करते हैं, तो नेगेटिव आना शुरू होता है जनरली। सम कंप्लीट हो गया। a प्लस बी प्लस सी, 22 प्लस 19 माइनस 24 पॉजिटिव आ रहा है। नेट इंक्रीज इन कैश इक्वलेंट्स, 22,000 प्लस 19,000 माइनस 24,750 इज 16,250, 16,250। ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर कैश आना चाहिए, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंस। हाउ मच इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंस? प्लीज चेक। हमारे पास ओपनिंग कैश है 5,000, हमारे पास ओपनिंग कैश है 5,000, तो क्लोजिंग कैश होगा 21,250, और आप देख सकते हैं इतना ही कैश है। इसका मतलब हमारे पास साल शुरू होने पर 5,000 कैश था, साल खत्म होने पर 21,250 का कैश था। ड्यूरिंग द ईयर 16,250 का कैश आया, और वो कैसे आया? 19 फाइनेंस से, 22 ऑपरेटिंग से और 24,750 इन्वेस्टिंग से गया है। आपका ये 6 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 6 to 8 मार्क का। 1 minute complete the sum, 1 minute complete the sum। Now you have provision for tax account, building account, जो आपके वर्किंग नोट है। बिल्डिंग में accumulated depreciation नहीं है। After that we have operating activities, then investing activities, then financing activities। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। पहला सम आपने गलत किया है, दूसरा क्वेश्चन गलत है। अगर क्वेश्चन गलत फ्रेम होगा तो, या आपने गलत किया होगा तो, लास्ट में कैश क्लोजिंग मैच करना ही चाहिए। 30 more seconds, स्पीड अप। Bye bye, take care, keep studying, keep rising. God bless.